So good afternoon, everyone. So this is the first lecture from my side officially. Previous to me, I think Hari sir has conducted your lectures. So now, so as it is the first lecture from my side, so first I will introduce myself. I think most of you are from section C and D. So section D people already know me, but for section C, I am just giving you my brief introduction. So myself, Tarun Jain. So I am currently in Manipal Group from last 5.5 years. So as for my academic education, currently I am doing my PhD from NIT Jaipur, that is Malviya Nagar Institute of Technology, Jaipur, from year 2018. Before that, I complete my masters from NSIT, that is Netaji Subhas Institute of Technology, Delhi, in the year 2015. As far as my technical knowledge is concerned, I have qualified GATE consecutively 6 times, starting from the BTech third year itself, and my highest percentile was I think 99.5, and the rank was approximate 1000. And I am also qualified UGC NET. As far as my expertise is concerned, you can say data structure algorithm and the automate and compiler part. I will be taking this course first time, yeah, but this is the course where you can relate the relational part or the research part. So if you go for the MS or the PhD, you can find there the one course name as a research methodology. So the syllabus is quite similar to that. The data science syllabus is quite similar to that. And also the people who want to pursue their research in the statistical field, then also they can find that so many topics are relating. So if you are good in maths, like mathematics parts will be there. So remember, I will assume somewhere like you know this thing. So if you are not getting that, you can correct me. So many basic things will be covered from the starting itself. Okay. So I think I am assuming that Hari sir has covered, I think one slide he has shared with me that he has covered. But again, for the sake of clarification from my side, because in the starting, I can't assume that you have clearly understand, but from my point of view, I will cover one time. So if you find any kind of doubt in that slide, then you can ask, otherwise we will move forward. So before starting, I'm just sharing the official the course handout with you, so that you will be familiar with the course handout. गर्ग सर ने उसके बारे में बताया था, एनीथिंग अबाउट द कोर्स हैंडआउट कोई डिस्कशन किया था? यस सर, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था कोर्स हैंडआउट का, लाइक ओवरऑल कोर्स का. ओके, सो ये आपका कोर्स हैंडआउट है. ध्यान रखना 3 क्रेडिट कोर्स है. इट मीन्स मिनिमम जो लेक्चर्स काउंट होगा वो 36 होगा. सो प्लीज बी सीरियस अबाउट द अटेंडेंस क्राइटेरिया 75%. So maybe offline or online we will see later, but please be serious about the attendance criteria. ठीक है ना? So इसमें जो इसके कोर्स आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स आर देयर. ठीक है ना? ये आपको रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, और आई थिंक ऑलरेडी शेयर भी किया जा चुका है. ठीक है. सो ये हमारे PSO हैं. अब ध्यान रखना, तो मिड टर्म 1 मिड टर्म 2 आपका जो इवोल्यूशन अप्रोच होगा वो 15 का होगा, और जो क्यूजीज का होगा वो 30 रहेगा. So I think जो most of you know, like we will try for the like 5 quizzes, then best 4 will be considered and the 2 assignment part. So one it has been finalized by the course that we will discuss, but tentative यही रहेगा. ठीक है ना? So be serious about the quizzes. Don't assume कि सर ऐसा होगा वैसा होगा. So assignment और quizzes के लिए आपको serious रहना, because it will constitute your 30 marks. That is the CWS part. Clear है? Hello? यस सर. ये क्लियर है. और ये अगर ये कुछ चेंज होता है मैं बता दूंगा आपको, बट या असाइनमेंट एंड क्विज़ विल बी देयर. हल्का सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम 90%. ठीक है ना? छोटे मोटे माइनर चेंज हो सकते हैं. ये आपका एंड टर्म एग्जाम है 40 मार्क्स का. ठीक है. सो अटेंडेंस का क्राइटेरिया पता ही है. ये आपका सिलेबस है. ठीक है. इसके लिए ये रेफरेंस बुक्स मेंशन है. एक काम करूंगा, एक बार मैं भी खुद से एक्सप्लोर कर लूंगा, देन आई विल टेल यू. Yeah, but you can even refer these as well because it is mentioned in the handout itself. ठीक है. So ये आपका लेक्चर प्लान है. ठीक है ना? 40 लेक्चर्स का है या, बट मिनिमम ध्यान रखा 36 लेक्चर्स होंगे. और ये CO से PSO की मैपिंग है. आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है. सो बट जस्ट इट इज रफली अबाउट योर हैंडआउट. ठीक है ना? और हम कैसे हम लोग अपनी इवैल्यूएशन पॉलिसी क्या फॉलो करेंगे, ध्यान रखना. इट इज पॉसिबल दैट अप्रोक्सीमेट एट द लाइक 10 मतलब 10 तारीख के आसपास आपका क्विज हो सकता है कि हो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, दैट वी विल नोटिफाई. ठीक है ना?
इज इट ओके? हेलो Yes, sir. भैया, आपका एक क्यूज हो सकता है बिकॉज ऐसे नॉर्मली टाइम टेबल जो है टाइम टेबल टीम की तरफ से आता है, बट वो अभी तक आया नहीं है. सो वी विल सी लाइक वेदर वी कैन गो फॉर दैट और नॉट, बट या आई विल नोटिफाई यू. सो बट थोड़ा माइंड मेकअप करके चलना कि जो जो करवाया गया एक बार बस गो थ्रू कर लेना. इंट्रोडक्टरी क्यूज होगा, बट या इट कैन बी देयर, सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. कि ऐसा ना हो कि आप लोग को रन टाइम में पता लगे तो बोले कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है ना. सो जो भी अभी तक हुआ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेना. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट थिंग, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन पार्ट. भाई देखो, हमेशा एक होता है कि नॉर्मली क्लास में आपका स्टूडेंट सीआर होता है, वो इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करता है. सो आई थिंक फ्रॉम सेक्शन डी इट इज क्लियर ऑलरेडी. गर्म मगू, यू आर द ऑफिशियल सीआर, सो नो इशू. फ्रॉम सेक्शन सी, हु इज द ऑफिशियल सीआर? गर्म, Sir, Kunal Bhalla. अपने इसमें बैच में है क्या वो डीएस के? Yes, sir. I guess he's a part of our batch. कुणाल, जस्ट रेज योर वॉइस इफ यू आर देयर. गर्म, आर यू श्योर? फ्रॉम सेक्शन सी, कैन यू कंफर्म? सेक्शन, Yes, sir. Yes, sir. वो बैच में शायद सर वो भी मीटिंग में नहीं है, क्लास में नहीं है, वैसे है बैच में. कंफर्म है, ठीक है, देन इट इज फाइन. सो यस, प्लीज रिमेंबर फॉर गर्व, एक काम करना, उसका नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना, है ना, जो कुणाल जो सेक्शन सी से है. फॉर योर बैच अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ऑफिशियली, फर्स्ट गर्व विल सर्कुलेट, ठीक है ना. और अगर कुछ होगा तो सेक्शन, मतलब आपका जो सेक्शन सी से सीआर है वो भी आपका कुणाल, दैट विल ही विल आल्सो सर्कुलेट, ठीक है ना. तो ध्यान रखना, अगर कोई भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर एडजस्टमेंट वगैरह है, वो दोनों खाली यही दोनों ऑफिशियली उनको टैकल करेंगे, फ्रॉम सेक्शन डी गर्व एंड फ्रॉम सेक्शन सी कुणाल, ठीक है ना. Apart from that, I will not listen any query to any of the students. Yeah, but if you are having any query regarding the like doubts and all and the notes and all, you can approach me. ठीक है ना. डाउट के लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लेक्चर का कोई भी एडजस्टमेंट या कुछ भी है तो आप पहले अपने ऑफिशियल सीआर को एक बार कम्युनिकेट कर दें. ये इसलिए किया गया ताकि आप लोगों का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्मूथ रहे, सो दैट कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना. Yes, sir. Yes, from personal introduction, anything you want to know extra about me from section C student? Anyone? No? Okay. So now I am officially starting the this first slide with you. I think Ali sir has told me that he has already covered. Yeah, but even then I will try to touch some aspects. If you already got, then it is very good from my side. Otherwise, just listen, no issue. Garv, like this is visible or not? Please reply. Yes, sir. Slide is visible. Okay. सो जो फर्स्ट स्लाइड है वो आपका ओवरव्यू है. ये बता रहा है कि हमारा जो हम सर्वे करते हैं उसका गोल क्या होता है और हम डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है ना. सो एक कॉमन गोल ऑफ सर्वे क्या होता है, एंड अदर डेटा कलेक्टिंग टूल इज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ए स्मॉलर पार्ट ऑफ ए लार्जर ग्रुप सो दैट वी कैन. ध्यान रखना, हम लोग करते हैं जो डेटा साइंस, ये जो हम इसमें पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकली, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होता है कि देखो अगर हमारे पास जब भी कोई पॉपुलेशन होता है ना, वो काफ़ी लार्ज साइज में होता है. तो सपोज करो हमें कोई हाइपोथेसिस बनाना है, तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है और वो उसको टेस्ट भी करके देखना होता है. तो सपोज करो अगर मेरी पॉपुलेशन में जो मेरे पॉपुलेशन का साइज है वो 100 करोड़ है, सो आई कैन कंडक्ट द लाइक माई सर्वे ऑन द 100 करोड़ डेटा. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्मॉलर सबसेट पे करता हूँ. सपोज करो मुझे कोई नेचर, मतलब कुछ ही क्वालिटी के बारे में ऑब्जर्व करना है इंडिया के बारे में. तो अब आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज अप्रोक्सीमेट आई थिंक 125 करोड़. यस, है ना, अप्रोक्सीमेटली 120 और 125 करोड़. सो अगर मुझे कुछ मतलब करना है किसी पॉलिसीज के बारे में, सो मैं 125 करोड़ पे ना करके मैं ये हो सकता है कि उसको मोर सिस्टमैटिक वे में करूँ. कैसे? मैं हो सकता है सपोज इंडिया में 28 स्टेट हैं, ठीक है. सो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 28 स्टेट की पॉपुलेशन लेके, भाई 28 स्टेट जो है मेरे पास 28, उनका कंप्लीट पॉपुलेशन लेके मैं उनका सबसेट ले लूँ. भाई सपोज करो एक स्टेट में अगर 10 करोड़ हैं, तो हो सकता है भाई मैं 1 करोड़ या 50 लैक्स ले लूँ. तो ऐसे क्या होगा, जो भाई मेरी पॉपुलेशन का साइज जो 125 करोड़ से मुझे डेटा मिलता है, मुझे रफली आइडिया कितने डेटा से मिल सकता है, हो सकता है 1 करोड़ डेटा से मिल जाए या अप्रोक्सीमेट टू दैट डेटा. गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्वे, कि हम सर्वे में क्या करते हैं. सो सर्वे में जो हमारा मेन टारगेट होता है वो क्या होता है कि भाई हम लोग स्मॉल डेटा पे अपनी कैलकुलेशन को अप्लाई करते हैं और स्मॉल डेटा पे कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद हम जो प्रिडिक्शन है वो लार्जर डेटा सेट या लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट द सर्वे पार्ट.
और ध्यान रखना ये जो आप लोग पढ़ेंगे इसमें इस सब्जेक्ट में हाइपोथेसिस वगैरह ये सब सारा का सारा इन्हीं चीजें का अराउंड घूमेगा कि आपकी पॉपुलेशन का साइज लार्ज है और आप काम किस पे करेंगे, आप लोग स्मॉल डेटा पे करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई अबाउट द Yes, sir, it is clear. क्लियर है ना भाई? लार्ज डेटा और स्मॉल डेटा में क्या रिलेशनशिप है कि लार्ज डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल भी है तब भी हम लोग यूज नहीं करते, बिकॉज क्या है कि जो हमारी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा ह्यूज रहेगी, ठीक है ना। सो हमारा टारगेट क्या होता है भाई, लार्ज डेटा को यूज ना करते हुए हम लोग स्मॉल डेटा पे ही काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्वेइंग प्रिंसिपल, यही आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं या बेसिक ऑब्जर्वेशन है। सो डेटा क्या होता है बेसिकली समझिए। तो डेटा कुछ नहीं होता भाई, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी मेजरमेंट, जेंडर, सर्वे रिस्पॉन्स, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा है, ठीक है ना। वट एवर यू आर कलेक्टिंग ऑफिशियली, वट एवर यू आर रिकॉर्डिंग या ऑब्जर्विंग, दैट थिंग इज नोन एज द डेटा। अब वो डेटा क्या है, किस टाइप का है, वो नेक्स्ट थिंग है, ध्यान रखना। सो डेटा क्या है, जो भी आपने कलेक्ट किया दैट इज द डेटा, ठीक है। सपोज करो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं उसके आंसर अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सपोज बोलूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपने हरीश सर ने कितनी क्लासेस ली, सपोज यू से सर 8 क्लासेस ली, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, दैट इज द डेटा। एंड सपोज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट टॉपर, 5 बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, मैं नाम लेके लेता हूँ। सो जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, एवरीथिंग। सो ऑब्जर्वेशन यही होती है, ठीक है ना। सो ध्यान रखना अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आप कोई चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज द डेटा। सो ध्यान रखना रिकॉर्डिंग इज मैंडेटरी, समझ रहे हो ना भाई। ऐसे सपोज करो मैं वर्बली कुछ भी पूछ रहा हूँ, आप कुछ भी जवाब दे रहे हो और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, सो दैट कांट बी काउंटेड एज द डेटा, ठीक है ना। सो डेटा का मतलब बेसिकली यही है कि भाई कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई मेजरमेंट है जो आप जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। अब वो डेटा है किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है ना। सो डेटा क्लियर है अगर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा हियर? Yes, sir. यस, कोई डाउट आए तो बता देना। नेक्स्ट थिंग आती है स्टैटिस्टिक्स, सॉरी व्हाट शुड वी से, स्टैटिस्टिक्स, यस, जस्ट माइंड द एक्सेंट। सो स्टैटिस्टिक्स ये बेसिकली क्या होता है, सो ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स आपको पता होगा, स्टैट्स बेसिकली शॉर्ट उसमें हम लोग स्टैट्स बोलते हैं इसको। ये क्या क्या है, ये बहुत कुछ है। सो देखिए इसमें क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है इसका, ये कलेक्शन ऑफ मेथड्स है किस चीज के लिए, प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्टेनिंग द डेटा, और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द डेटा। सो ध्यान रखना इस स्टैट्स के डेफिनेशन में इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड है, प्लीज रीड इट अगेन। कि प्लान करना एक्सपेरिमेंट को, फिर उसके लिए डेटा ऑब्टेन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और ड्राइंग कंक्लूजन। सो ध्यान रखना हो सकता है कि अगर आप किसी और बुक को रेफर करें सो आपको थोड़ा बहुत और डिबेट करती हुई डेफिनेशन मिल सकती है, बट स्टार्ट्स इंक्लूड सो मेनी थिंग्स, समझ रहे हो ना भाई। एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने से लेके उसको डेटा को अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना और फिर कंक्लूजन निकालना, ये सारा का सारा स्टैट्स का पार्ट है। इज इट क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स हियर? प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। Yes, sir. सो नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। सो ध्यान रखना पॉपुलेशन कर्व जैसे मैंने पहले बात करी थी कि जो हमारा जो कंप्लीट सेट है, जो कंप्लीट है, द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी स्कोर्स हो सकता है, पीपल की मेजरमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, तो जिसको हमें स्टडी करना है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। द कलेक्शन इज कंप्लीट इन द सेंस दैट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, ठीक है ना। सो ध्यान रखना अगर सपोज करो मुझे दिल्ली के लोगों की एनालिसिस करनी है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, सो ध्यान रखना अगर आप बोलते हो कि इंडिया, कि इंडिया के लोग ये पॉपुलेशन है तो गलत होगा। तो अगर आपको दिल्ली के लोगों की एनालिसिस करनी है तो ध्यान रखना तो पॉपुलेशन में क्या काउंट होगा, दिल्ली के पर्सन, यानी द पर्सन हु बिलोंग्स टू द दिल्ली, बट द पर्सन हु बिलोंग्स टू द यूपी और दैट काउंट बी काउंटेड इन द पॉपुलेशन। सो ध्यान रखना पॉपुलेशन से मतलब ये है कि जहां पर आप लोग स्टडी करने वाले हैं तो उस सेट के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट, उसको हम बोलते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो प्लीज रिमेंबर पॉपुलेशन का मतलब कंप्लीट सेट होता है, बट कंप्लीट सेट से मतलब ये है कि जहां पर आपको एनालिसिस या सर्वे करना है। ऐसा नहीं है आप कंप्लीट सेट करने के लिए आप लार्जर स्केल पे चले जाएं कि सपोज करके आपको एनालिसिस करनी है दिल्ली की और आप लोग बोलो भाई पॉपुलेशन चाहिए तो आपने इंडिया को कंसिडर कर लिया, वाई कि भाई दिल्ली भी तो इंडिया का पार्ट है, बट ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ना? हेलो, Yes, sir. ये क्लियर है ना भाई? पॉपुलेशन का मतलब कंप्लीट सेट है, बट उस कंप्लीट सेट को आपको अननेसेसरी उसको वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, अपर लेवल पे नहीं जाना, ठीक है ना। अब आता है अब एक आता है सेंसस, जिसको हम आई थिंक सेंसस का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई, गणना, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सेंसस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में?
घर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस इन द एक्चुअल सर आईडी से जनगण बोलते हैं, जैसे जनगणा जनगणा ऐसा कुछ काइंड ऑफ बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो देखिए सेंसस का मतलब होता है कि अगर आप लोग जो है भाई भाई आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन को, तो हम इसको सेंसस बोलते हैं। सो ध्यान रखना, कई जगह हमारी सेंसस अप्लाई होती है, कई जगह नहीं होती। सो जब हम लोग जनगणना करते हैं तो वहां पर सेंसस होता है वो, ठीक है ना। जब आप लोग देखते हैं कि कई बार हर घर में जाके देखते हैं, दैट इज द जनगणना। बट कई बार जरूरी नहीं है कि हर जगह सेंसस अप्लाई हो। कई जगह हम लोग क्या करते हैं, डेटा की सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग में क्या होता है, हम लोग जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही सेलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द सैंपल। सो देखो सेंसस का मतलब क्या है कि आप कंप्लीट डेटा को कंसीडर कर रहे हो पॉपुलेशन के, ठीक है ना। सेंसस मींस द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। बट यहाँ पर सैंपल का मीनिंग क्या है कि ये सब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ए सब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल। सो मीनिंग क्लियर हुआ? यस प्लीज रिप्लाई। यस सर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना भाई। सेंसस का मतलब ये है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कंप्लीट सेट को कंसीडर कर रहे हैं आप लोग। बट सैंपल का मतलब ये है कि भाई आप सैंपलिंग कर रहे हैं, यानी आप पर्टिकुलर कुछ कुछ एलिमेंट्स को निकाल के कर रहे हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि कभी आपको सेंसस कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ पे सैंपल अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो सपोज कि रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन कोलेस्ट्रॉल इन जैक्सन कंट्री। सो पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है ना। सो व्हाट वुड बी द हिज पॉपुलेशन। सो जो ऑल एडल्ट्स है जैक्सन कंट्री में, सो वो क्या होगा, अगर एटलीस्ट 1 पैक पर डे, वो उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसका सैंपल क्या हो सकता है, सैंपल ये होगा कि सम रीजनेबल नंबर ऑफ स्मोकर इन जैक्सन कंट्री हु स्मोक 1 पैक पर डे, ठीक है ना। सो देख लीजिए यहाँ पर भाई पॉपुलेशन से मतलब क्या और सैंपल से मतलब क्या है। प्लीज सी दिस एग्जांपल केयरफुली। इससे आपको आइडिया हो जाएगी कि यहाँ पर भाई सैम्पलिंग लगती है और क्या सैंपल और क्या वो है। सो ध्यान रखना, सैम्पलिंग हम लोग तभी लगाते हैं जब हमारा जो वो है ना, वो थोड़ा ना फीजिबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारे पास डेटा नहीं होता, हमारे पास डेटा होता भी तो फीजिबल नहीं होता। तो ध्यान रखना, सैम्पलिंग हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। सेंसिस अगर कहीं बार पॉसिबल होता भी है तभी हम लोग सेंसिस अप्लाई नहीं करते। रीजन क्या है कि सेंसिस का जो साइज है, पॉपुलेशन का साइज नॉर्मली बहुत ज्यादा ह्यूज रहता है एज कम्पेयर टू द सैंपल साइज, ठीक है ना। सो दैट इज वाई मोस्टली आप लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग सैम्पलिंग ही अप्लाई करते हैं, यानी हम लोग सम डेटा मतलब सबसेट डेटा पे काम करते हैं, मेन पॉपुलेशन में काम नहीं होता, ध्यान रखना। क्लियर है एग्जांपल? यस सर, इट इज क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब नेक्स्ट है, सपोज करो भाई ये सोशियोलॉजिस्ट है, वो हाइपोथेसाइज करता है कि भाई एवरेज एनुअल इनकम जो है वो इसकी ये है पर ईयर। और अगर उसको अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि उसको 500 सैंपल चाहिए, आप बता सकते हैं भाई इसके लिए पॉपुलेशन क्या होगा। तो इसने बताया कि पॉपुलेशन क्या होगा कि भाई जो सेट ऑफ जो ऑल हाउसलैंड है मरीना इसके अंदर, व्हाट इज द नेम, मरीना व्हाटएवर इज एक्शन, ठीक है ना। सो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए और समझिए कि क्या पॉपुलेशन करेक्ट दी है यहाँ पे। यस सर, आ गया समझ। ठीक है ना। सर इस एग्जांपल में सेंसस क्या होगा? आप बताइए क्या होगा भाई। सेंसस का मतलब ये होगा जो भी ये ऑल हाउस है वहां से अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द सेंसस। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन और सेंसस है यहाँ पे एक ही चीज अप्लाई कर रही है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पॉपुलेशन एंड द सेंसस आर द सेम। तो ध्यान रखना है, बट सेंसस का मतलब है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप ऑल डेटा से कर रहे हैं कंप्लीट पॉपुलेशन, तो देन इट इज द सेंसस वन। सपोज करो अगर आप ये ईयर की ये जो महीने की जो वो निकाल रहे हैं, इनकम निकाल रहे हैं, तो अगर आप इनकम जो है हर घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज द सेंसस। इज इट ओके? यस प्लीज रिप्लाई ओके सर। whether the answer has been clear to you or not. Please reply. यस सर, क्लियर। Okay, good. Yes, Garv, I think it is clear. यस सर, इट इज क्लियर। ये देखिए सैंपल क्या है। So the sample must be a the subset of the population. In this case, it is the 5,000 households selected by the sociologist. So ध्यान रखना, पिछले एग्जाम्पल में अगर बोलें कि भाई सैंपल क्या है, तो सैंपल उसने पहले ही बता दिया कि भाई जो 500 का जो ये घर है, ये उसका वो है, इसको टेस्ट करिए, उसका मतलब ये सैंपल हो गया। और पॉपुलेशन क्या है कि भाई जो सेट ऑफ ऑल ये हाउस होल्ड है, ये आपका
पॉपुलेशन है और सैंपल क्या हो गया जो 500 का सिलेक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है इसे सपोज कोलावाल, इसके ऊपर पढ़िए। जैसे अच्छी स्लाइड है बेसिक्स के लिए ये। गर्भ, इज इट क्लियर? Yes, sir, it is clear. देखो कोलावार क्या है, एक पॉपुलेशन है, पॉपुलर टर्म है कि जो कंपटीशन है कोका और कोला और पेप्सी के बीच में, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि भाई इनकी कंपनी ने एक फीचर्ड मूवी किया, मतलब भाई टेलीविजन स्टार सबसे पहले कंपेनिंग कराया है, ठीक है ना। अब सपोज करो कि भाई कि मार्केटिंग कंपेन के रूप में एक क्या कर रहे हैं कि 1000 कोला कंज्यूमर को एक ब्लाइंड टेस्ट सेट में कह रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि भाई आप किस पे जाएंगे, ब्रांड ए या ब्रांड बी पे, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि भाई इसका पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है ना। सो ध्यान रखना इसका पॉपुलेशन क्या है कि भाई पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्री इज द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर ऑफ कोला प्रोजेक्ट। भाई भाई जो कंपेन है वो पेप्सी की तरफ से है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे जाएगा कि भाई उसको उस कंज्यूमर को जाना है जो दूसरी प्रोडक्ट पे जाता है, यानी कोला वाले। और सैंपल क्या है, सैंपल साफ साफ क्लियर है कि भाई जो 1000 का जो ये लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज द सैंपल। सो क्लियर है ना यहाँ पे कोला मतलब पॉपुलेशन और सैंपल। ध्यान रखना पॉपुलेशन के अंदर आप पेप्सी वालों को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि भाई कौन पॉपुलेशन में कौन से उसको ऐड करना है किसको नहीं करना है। इट शुड बी क्लियर फ्रॉम योर साइड, देयर शुड बी नॉट बी एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी फ्रॉम यू लाइक कि व्हाट शुड बी कंसिडर्ड और व्हाट शुड नॉट। प्लीज बी मेरे क्लियर। ख्याल से यहाँ पे कोला शायद दोनों है, मतलब कोला से इनका मतलब कोल्ड ड्रिंक है शायद। नहीं बेटा, यहाँ पर देखो कोला वाला ये कोका कोला एंड पेप्सी, समझो बेटा। ये सर इन्होंने कोला को शायद कोल्ड ड्रिंक को कोला लिखा है इन्होंने ऐसा मेरे ख्याल से। सर ये तो कोका कोला पूरा लिखा हुआ था वहां पे भी। हाँ नहीं अच्छा सपोज कोका कोला लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। बेटा यहाँ पे कोला का मतलब कोका कोला है, बात समझिए। हेलो ये सर। बेटे यहाँ भी सबसे लिखा हुआ है ना 1000 कोला कंज्यूमर। सर नहीं सर, आप सर यहाँ पर अगर आप कोला को कोल्ड ड्रिंक से रिप्लेस कर देंगे तो फिर सर ज्यादा सेंस बनेगा। यस इस सर एक बार, यस सर मेरे ख्याल से ये मतलब है। सर वही टर्म में कंफ्यूजन है, इससे कोका कोला ने अपने नाम में कोला लिखे, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए सर। यस सर, सर सभी टर्म्स के साथ जैसे कोका कोला का जो ब्रांड नेम है वो कोला से कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यस सर। चलो और देखने एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मीनिंग तो क्लियर आ रहा है ना। ये तो समझ में आ रही है ना कि बेसिक एनालॉजी भाई यहाँ पर कहाँ पर सेट है, क्या उसका मतलब वो है सैंपल है, क्या उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है ना। और कहाँ पॉपुलेशन और सैंपल को देखना है, चीजें क्लियर तो हो रही है ना। यस सर ये क्लियर है बाकी। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा। सो पहले बात करते हैं पैरामीटर की। सो ध्यान रखना पैरामीटर बेसिकली होता क्या है कि भाई सपोज करो कोई आपकी पॉपुलेशन है। सो भाई अगर आपके कोई कुछ ऐसा मेजरमेंट है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है पॉपुलेशन की, तो हम उसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है।
सपोज करो भाई ये आपका कोका कोला के यूजर थे, तो यहाँ पर पैरामीटर क्या हो सकता है, उनका टेस्ट एक पैरामीटर हो सकता है ना, हेलो, उनका पैरामीटर एक टेस्ट गुड या बैड हो सकता है, ठीक है। यस सर। इस तरीके से पॉपुलेशन के किसी भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कोई डिफाइन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, जिसको लोग आप नॉर्मली डेटाबेस में आप लोग एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं या कॉलम पढ़ते हैं, दैट इज ऑल नेम एज अ पैरामीटर। क्लियर है? पैरामीटर बोलो, फीचर बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, कॉलम बोलो, ऑल थिंग्स आर मीन द सेम। बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ, रीजन क्या है कि यहाँ पे आप लोग जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रो और कॉलम भी एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ टर्म नोन एज अ पैरामीटर इज रिटन हियर। क्लियर है? बट समझिए कहीं ना कहीं आप पैरामीटर को रिलेट कीजिए फीचर्स के साथ, आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये फिर ये स्टडीज क्या है कि भाई एनुमेरिकल मेजरमेंट डिस्क्राइबिंग सम करेक्शन ऑफ सैंपल, उसको हम ये दिखा रहा है कि स्टेट्स ये भी होता है कि भाई जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि अगर वो कुछ सैंपल के कुछ करेक्शन से डिफाइन कर रहा है उसको हम स्टेट्स बोलेंगे। अब आता ध्यान रखना डेटा तो ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई कोई भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज नोन एज अ डेटा, ठीक है ना। बट आई हैव क्लियर कि व्हाटएवर यू ऑब्जर्व दैट इज अ डेटा। अब इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्या होता है क्वांटी? तो ध्यान रखना क्वांट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? क्वांटिटी और क्वालिटी, आई थिंक दो बोथ थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। क्वांट मतलब नंबर्स। हाँ, क्वांट मतलब नंबर्स और क्वालिटी मतलब सम काइंड ऑफ फीचर्स व्हिच यू कांट गिव देम नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। आपने पढ़ा भी होगा कि भाई यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, है ना। ये स्टैंडर्ड स्लोगन्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। यस सर। सो यहाँ पर ध्यान रखना क्वांटिटी का मतलब, क्वांट का मतलब बेसिकली नंबर्स होता है। क्वांट, क्वांटिटेटिव कहाँ से राइट हुआ? क्वांट से, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ क्वांट। सो क्वांट का मतलब बेसिकली नंबर्स होता है। तो ये क्या कह रहा है? नंबर रिप्रेजेंटिंग काउंट्स और मेजरमेंट, ठीक है ना। तो उसको हम क्वांटिटी डेटा बोलते हैं। सपोज करो कि हम बोलते हैं कि भाई वेट क्या है इस मॉडल का, तो ये क्या है? इसकी क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी हो सकता है उसका स्लिम, आप बोले कि बॉडी टाइप, तो बोले स्लिम है या वेट, मतलब वो है स्लिम है, ओवर वेट है, इस तरीके से, दैट इज अ क्वालिटी। बट अगर आप उसका वेट पूछ रहे हैं दैट इज अ क्वांटिटी। क्लियर है ना? सो आपको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वेरिएबल क्या है, वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्लियर है? हेलो। यस सर। If some parameters has been defined, then you should must be able to identify that what kind of that parameter is, like quantitative or the qualitative, ठीक है। अब आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ध्यान रखना, जहां पर क्वालिटी होगा इसका मतलब क्वांटिटी आप यू कांट मेजर, और वहां पर हम बोलेंगे कि कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है ना। सो ध्यान रखना, मैं थोड़ा इसमें आगे भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कैटेगरिकल, ठीक है ना। सो कैन बी सेपरेटेड, ध्यान रखना इसे डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, डेट आर सिमिलर सम नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ भाई जेंडर क्या है प्रोफेशनल एथलीट्स का, तो ये ध्यान रखना है क्वांटिटी नहीं है, उसकी क्वालिटी है। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई। इस स्लाइड यस में सर। दोबारा देखिए, क्वांट वाली को और क्वालिटी वाली को एक बार दोबारा देखिए। इफ यू थिंक दैट समथिंग नीड्स टू बी क्लियर देन आई विल अगेन क्लियर इट। यस सर, इट इज क्लियर। ठीक है। अब ध्यान रखना, घर अब इसमें आंसर नहीं लिखे हुए हैं, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया नहीं आया। सो ध्यान रखना, कलर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन डीलर्स शोरूम, कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या है? क्वालिटी है और क्वांटिटी है। सर क्वालिटी। एनीवन एल्स? अमीशा, व्हाट इज दिस, क्वालिटी और क्वांटिटी? Sir, qualitative. आर्य की क्या है ये? Sir, qualitative. क्वालिटेटिव। व्हाई नॉट क्वांटिटी? Sir, because it is like pink or red, so it can't be measured. ओके। सो आई थिंक क्लियर हो रही है जो चीज, ठीक है। सो करना, इट इज अ, यू कैन से क्या है ये? क्वालिटेटिव। लिख देना, ठीक है ना। नंबर ऑफ सीट्स इन मूवी थिएटर्स, व्हाट इज दिस? सर क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट, ये क्या है? सर क्वालिटी। लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न, ये क्या है? क्वांटिटी। नंबर ऑफ कंप्लेंट, क्वांटिटी।
बोल सकते सर ये तो क्वालिटी बता सकता है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, नहीं, बट ये जो पैरामीटर है दैट इज अ क्वांटिटी वन, ठीक है ना। सो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि ये क्वालिटी है या क्वांटिटी, जहां पर भी नंबर्स आ रहे हैं इसका मतलब इट इज द क्वांट वन। अब हो सकता है उस काउंट से आप क्वालिटी को जज कर पाए, दैट कैन बी द राइट एट्रीब्यूट, गेटिंग माय पॉइंट। मैं कहीं सपोज करो आपके पास ये है कि भाई सपोज 5 फैकल्टीज आर देयर, तो आपको बताना है कि भाई आपके पास ये है कि इसकी इतनी कंप्लेंट है, तो किसकी क्वालिटी बढ़िया हुई, तो हो सकता है उस क्वांटिटी एट्रीब्यूट के बेस पे क्वालिटी बता पाए, बट द थिंग इज दैट वैल्यू शुड, पैरामीटर वो क्या रहेगा, वो क्वांटिटी पैरामीटर ही रहेगा। सो इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व कर लें कि दैट थिंग्स कांट बी चेंज, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप उसके बेस पे आप किसी और चीज को ड्राइव कर पाए, बट वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। रिप्लाई। अब आता है कि वर्किंग विद द क्वांटिटेटिव डेटा। अब ध्यान रखना जो क्वांटिटी है वो भी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कोई बता सकता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या क्या होता है? ध्यान रखना जहां भी क्वांटिटी आती है वहां पर आपने पढ़ा होगा कि भाई इंटीजर और फ्लोट टाइप का, तो ऐसे यहाँ पर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होता है। जैसे डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल और दूसरा मतलब अनकाउंटेबल। यस सर। सो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि भाई जो डेटा रिजल्ट है, जब हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, अगर फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो ये है। अब ध्यान रखना 0 1 2 3 फिर डॉट डॉट लगा हुआ है, इसलिए मत बोलो सर अनकाउंटेबल हो गया, नहीं, इट इज स्टिल इनफाइनाइट बट काउंटेबल, ठीक है ना। और अगर वैसे एग्जांपल देखना हो तो नंबर ऑफ एग्स दैट हैन कैन, ये इसका मतलब क्या है, इट इज ऑलरेडी डिस्क्रीट वन। क्लियर है? प्लीज आइडेंटिफाई द डिस्क्रीट वन। यस सर। अब आता है कंटिन्यूअस। सो न्यूमेरिकल डेटा रिजल्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल वैल्यूज दैट कॉरस्पॉन्ड टू सम कंटिन्यूअस स्केल, ठीक है ना। और ये किसी उसको करता हो विदाउट गैप से करता हो, गैप से कर सकता हो, इंटरप्शन और जंप हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो भाई मैं बोलता हूँ कि द अमाउंट ऑफ मिल्क डेटा काउ प्रोड्यूसेस, सो देखिए इसकी वैल्यूज है 2.343 हो सकता है आगे भी आ जाए, तो व्हाट इज दिस, इट इज द कंटिन्यूअस वन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर है? yes please reply whether it has been cleared or not, please reply. यस सर, क्लियर है। yes so आपको बताना ये क्या है, नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्टन्स, भाई क्या लिखा हुआ है इसका, कार्टन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सर कार्टन्स वो सर जो गत्ते के बॉक्सेस होते हैं सर। कार्टून बोल, अच्छा वैसे इस पे बोलते कार्टन्स हो गए, ठीक है। कार्टन। यस सर। क्या है भाई ये, डिस्क्रीट, यस सर, डिस्क्रीट। टेम्परेचर क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सर ये डिस्क्रीट। इनकम ऑफ कॉलेज स्टूडेंट ऑन वर्क, ओके सर, इनकम है। ओके सर, देन सर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है सर, ये तो पॉइंट तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है। यस सर। यार डिस्क्रीट है बट फिर भी यार बात मान लो इनकम है ना, इनकम डिस्क्रीट ही होती है। यस सर। हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है क्या, बताना। वेट ऑफ न्यू वन ये सर सर कॉन्टिन्यूअस ही होगा सर। जो मेजर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से वो कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड जो काउंट करना पड़ेगा वो डिस्क्रीट होना चाहिए। नंबर ऑफ टोमेटोज काउंट करने पड़ेंगे तो डिस्क्रीट। क्लियर है? यस इट इज क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। यस सर, इट इज क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है, एनीवन एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? नो सर। ओके सो ध्यान रखना, आप ध्यान रखना जो मेजरमेंट है ये अनदर वे भी हो सकता है। सो ये कुछ लेवल्स हैं, इनको समझ लीजिए। सो एक नॉमिनल लेवल होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा डेटा
जिसमें नेम्स आए, लेबल्स आए, कैटेगरीज आए, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये जो हो रहा है ना, ये सारा का सारा उसके लिए, कौन से डेटा के लिए, तो बता सकता है कर, कौन से डेटा के लिए है ये? सर ये सर क्वालिटेटिव। यस, इट इज अ कैटेगरी फॉर द क्वालिटेटिव, नॉट द क्वांटिटी वन, ठीक है ना। क्वांटिटी के लिए खाली दो था, एक क्या था डिस्क्रीट, एक था कंटिन्यूअस। अब जो क्वालिटी है, क्वालिटी के 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। सो नॉमिनल लेवल में क्या होता है भाई, जिसमें ना आप डेटा को अरेंज ना कर पाए। अब ये क्या हो सकता है, अरेंज का मतलब यहाँ पे लो से हाइट। तो नॉमिनल लेवल क्या होता है, जैसे सर्वे रिस्पॉन्स हो गया, यस या नो हो गया, कोई यहाँ पर लो और हाई नहीं है, समझ रहे हो ना। अब ये नहीं बोल सकते कि यस का मतलब है तो हाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। So, ऐसे मेजरमेंट को जो डेटा होता है, जो क्वालिटी में जो डेटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल लेवल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे नॉमिनल लेवल पे काम करते हैं। ऑर्डिनल लेवल क्या होता है कि सेम क्लास है, पहले वाली नॉमिनल की तरह होता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो ना ऑर्डर में किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। अरेंज हो सकते हैं, बट ध्यान रखना उनके बीच में डिफरेंस पता नहीं चलता। ध्यान रखना देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल, ठीक है। नॉमिनल क्या है कि अरेंज भी नहीं हो सकता, डिफरेंस से दूर की बात है, बस कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे जो नॉर्मल लेवल होता है वो नॉमिनल होता है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या है कि अरेंज तो किया जा सकता है, बट कि भाई या तो है, बट डिफरेंस क्या होता है कि भाई या तो डिफरेंस क्या है डिटरमाइन नहीं किए जा सकते, या फिर वहां पर मीनिंगलेस होता है। ऑर्डिनल में क्या है कि भाई अरेंज हो सकता है, कैटेगरी है, ठीक है, बट जो डिफरेंस होगा उनके बीच में या तो डिटरमाइन नहीं हो सकता या फिर मीनिंगलेस है। जैसे कोई कोर्स की अगर मैं ग्रेड बोलूं, तो भाई ए और बी के बीच में कितना भी डिफरेंस है, ए और बी ग्रेड के बीच में, चाहे 1 मार्क्स का हो चाहे 10 मार्क्स का हो, मीनिंगलेस है। अल्टीमेटली वन स्टूडेंट इज ए कैटेगरी, अदर इज द बी कैटेगरी, क्लियर है। So, इस प्रकार के जो मेजरमेंट होते हैं उस पे क्वालिटेटिव पे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, क्लियर है। यस सर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या होता है भाई, देखो ऑर्डिनल की तरह क्या होता है, इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इसमें जो डिफरेंस है डेटा वैल्यूज के पीछे मीनिंगफुल होता है। बट ध्यान रखना देयर इज नो नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, बस कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल क्या है, ईयर्स दे रखा है कि 1000 है, 2000 है, ये फिर ये 70 76 हो गया, 1492 हो गया, ठीक है, क्लियर है। यस, यस सर क्लियर है। इंटरनल क्या है, ठीक है। रेशियो लेवल क्या होता है कि इंटरनल लेवल को मॉडिफाई किया जाता है कि भाई इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक क्या होगा, 0% नो कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यूज पे आती है, क्लियर है। अभी एग्जांपल ही वैसे आगे भी आएंगे जब हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे। सो इसने थोड़ा सा समरी बना दी है। क्या है समरी, कि अगर नॉमिनल है तो हम उसको कैटेगरिकल बोलते हैं खाली। ऑर्डिनल का मतलब होता है कि भाई कैटेगरी तो है बट सम ऑर्डर भी है। इंटरवल क्या है, डिफरेंसेस तो है बट कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और रेशियो क्या है कि डिफरेंसेस भी है और एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है ना। सो पहले ध्यान रखना एन होता है, फिर ऑर्डिनल होता है, फिर इंटरवल, फिर द रेशियो, क्लियर है। सो दिस इज द 4 कैटेगरी फॉर द क्वालिटेटिव वन। क्वांटिटी के लिए 2 था, डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस वन। कोई डाउट है, एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर फ्रॉम दिस वन, प्लीज रिप्लाई। नो सर इट इज क्लियर। क्लियर है। अब आइए, ये थोड़ा गलत हो सकता है, सोच समझ के बताइएगा। हॉर्स पावर ऑफ मोटरसाइकिल इंजन क्या है। एक काम करना, मैं शेयर कर दूंगा, इसको आराम से देखना। आई थिंक इट रिक्वायर सम मोर लेवल, एक बार डिटेल थोड़ा और चाहिए, ठीक है ना। सो आई विल शेयर दिस विद यू। आई थिंक ऑलरेडी शेयर ना घर। यस यस ये ऑलरेडी शेयर्ड है। यस, सो ये देख लीजिए कि रिकैप में आपने इसमें क्या क्या देखा है। पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स देख लिया, टाइप्स ऑफ डेटा देख लिया, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट देख लिया, ठीक है ना। और ये इसमें क्या है की कंसेप्ट कि जो सैंपल डेटा है इसको हम अप्रोप्रिएट वे में करते हैं, ठीक है ना।
दूसरा क्या है कि अगर आप लोग अप्रोप्रिएट वे में कलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, यस। इसमें कोई डिस्कशन में किसी को एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर, प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। एनी काइंड ऑफ डाउट? No, sir, it is clear. Yeah, my pace was, you can see, quite fast. You may feel because the reason was I was assuming that already you have covered this slide by like हरीश सर, ठीक है ना? मैंने ट्राई किया कुछ कुछ एक्सप्लेन करने का जो मुझे लगा कि it should be, it is necessary, but yeah, somewhere my pace was on the high mode because I was assuming that you have already covered this thing with ना हरीश सर already, ठीक है? Now it is the feedback time. You can clearly reply. What do you think about the today's discussion? If any kind of improvement suggestion is there from anyone, you can frankly reply. There is not any kind of issue from my side. Any kind of improvement suggestion from for this course? Amisha, any kind of suggestion? No, sir, I think everything is clear. Garv? It was perfect as well, like face वगैरह and everything. Okay. Anyone from the section C? Because I think I already have taught to section D, so somewhere tuning is clear. No, sir, it's fine. Okay. ध्यान रखना कोई भी इंटरनल मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में आपके पास टाइम है। इफ यू थिंक एनीथिंग शुड बी इम्प्रूव, यू कैन जस्ट सिंपली रिप्लाई। एनी काइंड ऑफ इशू विल नॉट बी देयर फ्रॉम माय साइड, बट या इट इज अ हाई टाइम because in the starting only I give the chance to students. After that only I will tell you the suggestion you need to implement that. Any kind of suggestion from anyone? No? Okay, then I believe that discussion is good. So thank you class for your cooperation, because I feel personally sorry for the starting lecture missing. Yeah, but I had some urgent piece of work in my personal life, so that is why I was only, yeah, but I will try to make continuity from the next week itself, and you will observe this thing in the coming weeks. Section D students already know me, so they know that this lecture will always be there. Yeah, but for section C I am new, so yeah, but your lecture regularity will be there from my side. I will try this thing. Okay, so thank you class. I think my contact number is already with you, so in case of any doubt from section D, you can reach out to Garv, or from section C, you can directly communicate to your class CR Kunal, and then he can contact me regarding your doubts and any kind of clarification. ठीक है ना? और आप चाहें तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, then we can try for arrange for extra session as well. But in the next week, I will try to cover the pace with the, like you can say, faculty group, so that we can see like what are our correct status. So as for now, Harish sir and we are at the same level. 2 more sections are there, like Rahul Saxena sir in the IT and the Anju ma'am. So Rahul Saxena sir is I think 1 or 2 lecture ahead of us. So we'll try to match the speed with the Rahul Saxena sir. ठीक है? So ये हमारा next week का target रहेगा. After that everything will be in the smooth manner. Okay? So हो सकता है आपको next week थोड़ा fast लगे, but I will try to cover most of the things in proper manner. Okay? So thank you class. We will meet in the next week. So enjoy the vacation, or you can say holidays. So thank you class. Thank you, sir.